तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तु भवां परं विश्वम् येनेन्द्रं लोस्त्रवत् स्मृतम् वासुदेवे unto the all-pervading Supreme Personality, Bhagavati, unto the Personality of Godhead, Tadbhakteshu, unto his devotees, Cha, also, Sadhushu, unto the saintly person, Praptaha, one was achieved, Bhavam, reverence and devotion, Param, transcendental, Vishwam, the whole material universe, Yena, by which spiritual consciousness, Idam, this, Lo Shravan, as insignificant as a piece of stone, Smritam is accepted by such devotees. Maharaj Ambaresh was the great devotee of the Supreme Personality Godhead Vasudeva and of the saintly persons who are the Lord devotees. Because of his devotion, he thought of the entire universe as being as insignificant as a piece of stone. We start with 1820. Savai manah Krishna padaravindayo Vachamsi Vaikunta Gunanu Varnane Karor Hare Mandir Marjanadishu Shrutim Chakara Chuta Shatakathodhe Mukunda Lingalaya Darshane Dirsho Adbhrita Gata Parshayanga Sangamam Granam Chatad Pada Saroja Saurabhe Srimat Tulasya Rasanam Tadarpite Padav Hare Kshetra Padanu Sarpane Shiro Rishikesha Padavi Vandane Kamam Jadasana Tu Kama Kamaya Tatottama Shloka Janashayarati Savai Mana Krishna Padara Vindayo Vachansi Vaikunta Gunanu Varnane Karor Hare Mandir Marjanadishu Shrutim Chakara Chuta Shatakathodhe Mukunda Lingalaya Darshane Dirsho Adbhrita Gata Parshayanga Sangamam Dhanam Chatapada Saroja Saurabhe Shrimatula Sarasanam Tadarpite Pador Hare Kshetra Padanu Sarpane Shiro Rishikesha Padavi Vandane Kamam Jadasana Tu Kama Kamya Tatoshama Shloka Yata Janashayarati Savai Mana Krishna Padara Vindayo Achansi Vaikunta Gunanu Varnane Karor Hare Mandira Marjanadishu Shrutim Chakara Chuta Shatakathodhe Vitagata Sparshayanga Sangamam
Granam cha tatpada saroja saurabhe Shrimattulasya rasanam tadarpite Pado hare kshetra padanu sarpane Shiro rishikesha padhavi vandane Kamam jadasana tu kama kamaya Yathoshama shloka janashaya ratihi Savai mana Krishna padara vindayo Vachansi vaikunta gunanu Karor Hare Mandira Marjanadishu Shrutim Chakara Chutashatakathodaya Mukunda Lingalaya Darshane Disho Tadbhritya Gatra Sparshyanga Sangamam Dhanam Chatpada Saroja Saurabhe Shrimattulasya Rasanam Tadarpite Pado Hare Kshetra Padanu Sarpane Shiro Rishikesha Padhavi Vandane Kamitadasana Kama Kamaya Yathottama Shloka Janashaya Ratihi Tai Vaimana Krishna Padara Vindayo Vacham Si Vaikunta Gunanu Varnane Karor Hare Mandira Marjanadishu Kara Chuta Shatakathodaya Mukunda Lingalaya Darshane Disho Advaita Gata Sparshyanga Sangamam Pada Saroja Saurabhe Shrimattulasya Rasanam Tadarpite Pado Hare Kshetra Padanu Sarpane Shiro Rishikesha Padanu Vandane Kamam Tadase Natukama Kamaya Yathottama Shloka Janashaya Ratihi Saha He Maharaj Amrisha Why indeed Manaha is mind Krishna Pada Arvinda Yoho fixed upon the two lotus feet of the Lord Krishna Vachamsi his words Vaikuntha Gun Anuvarnane describing the glories of Krishna Karo his two hands Hare Mandira Marjanadishu in activities like cleaning the temple of Hari the Supreme Personality of Godhead Shrutem his ear Chakara in gay Achyuta of or about Krishna who never falls down Satakatha Udaye in hearing of the transcendental narrations Mukunda Lingale Darshane in seeing the deity and the temples and the holy Dhamma of Mukunda, the show his two eyes,
Tadvritya, of the servants of Krishna. Gatara Sparshe, in touching the body. Anga Sangamam, contact of his body. Dhanam Cha, and his sense of smell. Tatapada, of his lotus feet. Saroja, of the lotus flower. Saurave, smelling the fragrance. Shimat Tulasyaha, of the tulsi leaves. Rasanan, his tongue. Tadarpite, in the prasada offered to the Lord. Adau, his two legs. Arihe, of the Supreme Personality of Godhead. Of the Personality of Godhead. Kshetra, holy places, like the temple, our Vrindavan and Dwaraka. Pada Anusarpane, walking to those places. Shiraha, the head. Rishikesha, of Krishna, the master of the senses. Pada Abhivandane, in offering obeisances to the lotus feet. Kamam Cha, and his desires. Dasye, in being engaged as a servant. Na, not to indeed. Kama Kamaya, the desire of sense gratification. Yatha, as Uttama Shloka Janashraya, if one takes shelter of a devotee, such as Prahlad, Ratihi, attachment. Maharaja Ambarish always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna, his words in describing the glories of the Lord, his hand in cleaning the Lord's temple, his ears in hearing about the words spoken by Krishna or about Krishna, engaged his eyes in seeing the deity of Krishna, Krishna's temple and Krishna's places like Mathura and Vrindavana. Engage in sense of touch in touching the body of the Lord. Devotees engage in sense of smell in smelling the fragrance of tulsi leaf offered to the Lord. Engage in tongue in tasting the Lord Prasadam. Engage in legs in walking to the holy places and temples of the Lord. His head in bowing down before the Lord, and all his desires in serving the Lord 24 hours a day. Indeed, Maharaj Ambarish never desired anything for his own sense gratification. He engaged all his senses in devotional service and various engagement related to the Lord. This is the way of increasing attachment for the Lord and be completely free from all material desires. आइए सही आप बैठिए अभी दर्शन को लेकर पाँच भोग लग रहा है Upon by Srila Prabhupada. In Bhagavad Gita 7.1, the Lord recommends Manipasakta Manapata Yogam Vinjam Madasraya. This indicates that one must execute devotional service under the guidance of a devotee or directly under the guidance of a Supreme Person. It is not possible, however, to train oneself without guidance from the spiritual master. Therefore, according to instructions of Srila Rupa Goswami, the first business of a devotee is to accept a bona fide spiritual master who can train him to engage his various senses in rendering transcendental service to the Lord. The Lord also says in Bhagavad Gita 7.1, Samyam Magram Mam Yat. असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञासति तशृणु. In other words, if one wants to understand the Supreme Personality of Godhead in completeness, one must follow prescriptions given by Krishna by following the footsteps of Maharaja Ambarish. This recipes Devanam Bhaktir Uchati Chaitanya Charitamrita Bhakti 19.1. Bhakti means engage the senses in the service of the master of the senses, Krishna, who is called Rishikesh or Achyuta. These words are used in these verses. Achyuta Sat Patrodaya Rishikesh Padabhi Vandane. The word Achyuta and Rishikesh are also used in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is Krishna's Krishna Katha, spoken directly by Krishna
And Srimad Bhagavatam is also Krishna Kata, because everything desired in Bhagavatam is in relation to Krishna. Describe. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namah. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Shrindavati Shashati Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasana Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Savai Manah Krishna Padara Vindayo Vacham Sivaikunda Gunanubhandane Aror Harer Mandira Marjanadishu Shrutim Chakara Chutashatakathodare Mukunda Lingalay Darshane Disho Tadbhritya Gata Spashayanga Sangamam Granam Chapada Saroja Saurabhe Shrimattulasya Rasanam Tadarpite Padau Hare Kshetrapadanu Sarpane Shiro Rishikesha Padavi Vandane Kamam Jadasanatu Kama Kamaya Tatottama Shloka Jana Shayarati. Maharaj Ambarisha always engaged in mind in meditating upon the lotus feet of Krishna, his words in describing the lotus of Krishna, his hands in cleaning the Lord's temple, his ears in hearing the words of Krishna, or about Krishna, engaged in eyeing the eyes and seeing the deities of Krishna, Krishna temples and Krishna places like Mathura and Vrindavan, engage in sense of touch, in touching the bodies of the Lord, devotee engage in sense of smell, in smelling the fragrance of Tulsi offered to the Lord, engage his tongue in tasting the Lord's prasadam, and he engaged his legs in walking to the holy places and temples of the Lord, his head is bowing down before the Lord, all his desires of serving the Lord 24 hours a day. Indeed, Maharaj Ambarisha never desired anything for his own sense gratification. He engaged all his senses in devotion service and various engagements related to the Lord. This is a way to increase attachment to the Lord and be completely free from all material desires. So ये तो बहुत ही फेमस वर्स है भागवत में. प्रभुपाद जी इसको बहुत जगह कोट करते हैं. भगवत गीता में भी जब फेमस श्लोक आया मय्या सक्त मना पार्था योगम युञ्जमदाशय असंशयम समग्रम नाम यथा ज्ञाससिता श्रीमद्. 7th canto, 7th chapter, first shloka. And again, this shloka is also an expansion of the statement by Rupa Goswami, which is quoted in Chaitanya Charitamrita. Bhakti ka definition. Rishikena, Rishikesha, Sevana Bhakti Uchyate. Sarvopadi vinirmuktam tat paratvena nirmalam. Rishikena, Rishikesha, Sevanam Bhakti Uchyate. Person has to become free from all upadis. Tat paratvena nirmalam. इस तरह हृदय पवित्र हो जाना चाहिए. Rishikena, Rishikesh. In this way, when we serve through the senses, the Lord of the senses, the Lord, that is called Bhakti. But कैसे ऋषिकेन ऋषिकेश करें इस तात्पर्य में.
इंद्रियों से भगवान का सेवा करना है, ये तो दे दिया। कैसे कर सकते हैं? दिस इज गिवन एंड ही इज अ किंग, स्टिल ही इज फॉलन and he is successful because Lord is totally pleased. So it's a success story in front of us. We should take all the hints of what to do. So it starts with Savai Mana Krishna Padar Vindayo. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किस तरह अपना मन कृष्ण के चरण में रखना। सबसे पहले वहां से शुरू होता है। इंद्रियों में मन मुख्य है। अगर मन कहीं फिक्स हो गया, ऑटोमेटिकली इंद्रियां फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मन को कृष्ण के चरण में, सवई मन कृष्ण पदार विंदे। जैसे भगवान को नमस्कार करते हैं, एक्चुअली अपने माथे को भगवान के चरण में रखें, उसका वही मीनिंग स्वीकार करें। सवई मन कृष्ण पदार विंदे। नेक्स्ट, that is the beginning. Bhagavad Gita also Krishna says, mana mana, always think about me. So it starts with keeping them. Bhajahu re manashi nandana abhaya charanara vindya. Same thing. Bhajahu re man. Man, Krishna ka naam japa, Krishna ke charan mein. So, vachamsi vaikunta gunanuvanane. Now what do you do with the words? He speaks so many things. क्या करने का उससे? Vachamsi vaikunta gunanuvanane. We always use the words in glorifying the Lord. The next, Karor Hare Mandir Marjanadishu. अब हाथ से कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हरेर मंदिर मार्जनेशु, भगवान का मंदिर साफ करिए। मंदिर मार्जना. We have in the qualifications of Acharya also the word Mandir Marjanadishu. What is the third verse? Samsar down the line. Shri Vigraharadhana Nityanana Shingaratana Mandira Marjana. मंदिर मार्जना। सो सबसे पहले क्या करने का है? भगवान का भक्त बनना है तो अपना मन सबसे पहले कृष्ण के चरण में रखिए। सवई मना कृष्ण पदार विंदे। द सेकेंड थिंग दिस श्लोका सेज, क्या करना है? वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाचांसी, बोलने की बहुत आदत है, बग 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 बग। आप हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं? मेरे को लगा आप नॉर्थ इंडियन से, इसलिए मैंने क्लास हिंदी में कर दी। देखा स्मॉल कंसर्न तो किसी को पता नहीं, कैसे भी गूगल से देख के इधर आ गए, आगे भगवान के दर्शन मिल रहे थे। शुक्र। तो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान की अगर शरण लेना है तो ये अम्बरीश महाराज एक बहुत महान राजा रहे हमारे भागवत में, इनका बहुत डिस्क्रिप्शन है। इतने बड़े एक तपस्वी दुर्वासा मुनि को उन्होंने हरा दिया था। तो भागवत में एक ये सब हमारे लिए उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि ये लोग सब सक्सेस स्टोरी। जैसे आपका किसी का बेटा IAS में पास करता है, सब लोग सुनते हैं क्या क्या किया वो, हम भी वही चीज करेंगे। तो ये इतने महान भक्त भगवान के बने, क्या किया इन्होंने, इसका थोड़ा भागवत में डिस्कशन है। सवई मन कृष्ण पदार विंदे। सबसे पहले वो अपना मन कृष्ण के चरण में रखे, बिकॉज मन इंद्रियों में मुख्य है। अगर मन कहीं चला गया, इंद्रियां तो पीछे चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे आप भगवान का नमस्कार करते हैं, अपना माथा टेक रहे हैं, एक्चुअली माथा भगवान के चरण में रखें, उसका मतलब वही हो, भगवान हम आपके शरणागत होते हैं। सवई मन कृष्ण पदार विंदे। सबसे पहले चीज अपने मन को कृष्ण के चरण। नेक्स्ट चीज, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। पूरा दिन बग 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 बग, आज वैकुंठ गुणानु, भगवान के बारे में बोलो, क्यों इधर उधर की बात बोलना है ना? इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, वो जीत गया, वो हार गया, क्यों टाइम बर्बाद कर? समय सीमित है। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान की महिमा बोलो। कलयुग में नाम ही आधार है। कलयुग में बाकी चीज करना, जंगल में जाके तप करना, बड़े बड़े होम करना, ये सब असंभव हो गया है। तो ये सब क्रिया वेद की क्रिया, भगवत गीता ही मेंशन करी है, लेकिन कलयुग में असंभव नहीं। तृतीय अध्याय थे विष्णु, सतयुग में ये पॉसिबल था, ये ध्यान करना। त्रेतायुग के त्रेतयुग में यज्ञ करना भी संभव था, अभी संभव नहीं। द्वापार परिचय, द्वापार युग में बड़ी बड़ी अर्चन होती थी, कलयुग में भी अर्चन होती है, लेकिन हरि नाम के आधार में अर्चन।
और कलोद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में हरि के कीर्तन से ही आदमी को पूर्ण सफलता। अगर आप बोले कि चलो मेरे को तो कुछ करने का टाइम नहीं है, ठीक है, एक काम कर सकते हो, आप बैठ के अगर हरिनाम जप कर लोगे तो सब हो जाएगा। उसके पूरा धर्म हरिनाम के में आधारित है, उसमें कंप्लीट होगा। सवई मना कृष्ण पदारे बिंदु वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्णने। हाँ, ये तो गुणानुवाचन से वैकुंठ भगवान के नाम है। देखिए इतनी अच्छी ये पोएट्री है, हर लाइन में कृष्ण का अलग नाम यूज किया। पहले लाइन में क्या यूज किया, सवई मना कृष्ण पदारे बिंदु। दूसरी लाइन है वैकुंठ। वैकुंठा मतलब जहाँ एंग्जाइटी नहीं है, कृष्ण के धाम में कोई एंग्जाइटी नहीं। इसलिए हम भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हैं। सवई मना कृष्ण पदारे बिंदयो वाचन से वैकुंठ गुणानुवर्णने। बहुत सुंदर है। करोड़ हरेर मंदिर मार्जनादिश। तीसरा चीज, अपने हाथ से मंदिर हमेशा साफ करना चाहिए। हो सकता है अपने घर में हम बड़े हों, जैसे आपके अभी देखिए जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा होने वाला है, वहाँ राजा आएगा और सबके सामने झाड़ू लगाएगा। तो ये है। हो सकता है राज्य में राजा हो, लेकिन भगवान के सामने तुम्हें निम्न कोटि के आदमी सफाई करो, उससे अच्छा रहता है। अपने मन को भी थोड़ा वो लगता है, हाँ भाई भगवान का सेवक, क्योंकि झाड़ू उठाने में बड़ी शर्म लगती है। लेकिन राजा भी जब भगवान के आगे झाड़ू उठाता है तो उसको भी लगता है सबके सामने भी मैं तो भगवान का एक दास हूँ। तो पब्लिक को भी एक एग्जाम मिलता है, देखो अगर दास हो तो हम भी दास हो गए। करोड़ हरे मंदिर मार्जनादिशु। मार्जनादिशु मतलब सफाई करना। श्रुतिम चकार अश्रु सतकुतोदय। अब सुनने का, तो अगर सुनने का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुनेंगे क्या सुनेंगे, उसी से हमारी पूरी मन बदल जाता है। एक्चुअली पूरे हर क्षण अपने मन को सुन रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्या सुन रहे हैं इसमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, बहुत शार्प होना पड़ता है। क्या सुन रहे हैं, क्या चीज हम सोच रहे हैं, बहुत शार्प होना पड़ता है। जितना शार्प होगा उतने आप एडवांस्ड हो। जिस आदमी का इंटीग्रिटी बहुत हाई होता है वो बेमतलब की चीज बिल्कुल भी नहीं सुनता। प्रभुपाद जी बोलते हैं अव्यर्थ कालत्रम। महान भक्त का लक्षण है एक क्षण बर्बाद नहीं करता। अव्यर्थ एक क्षण बर्बाद नहीं करता। बेमत की चीज वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि जो सुनोगे उससे पूरा मन विचलित हो जाता है। अगर कोई चीज भगवान की सेवा के विपरीत है उसको सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम सुनते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। 24 घंटे न्यूज के चैनल चल रहे हैं टीवी में, लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं। सुनो, जनरली बुढ़ापे में लोग पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्षमा करना, हमारा ऑटो रुका हुआ है, क्षमा करना। इनको चलो प्रसाद देते। तो श्रुतिम जकार अच्युत कथोदे, तो सुनना क्या सुन रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मुकुंद भगवान के विग्रह का दर्शन करना। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो तद भृत्य गात स्पर्श अंग संगम। तद भृत्य गात स्पर्श अंग संगम। ये मेरे रूम में रखा है, 2 लड्डू दे दो, टेबल में रखा। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो, मंदिर में जाके भगवान के विग्रह का दर्शन करना। तद्भित्र गात स्पर्श अंग संगमम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो जनरली बहुत चीज देखने का मन होता है इस दुनिया में, हम लोग आकर्षित हो जाते हैं कोई चीज सो कॉल्ड सुंदर हो। तो मुकुंद लिंगालय दर्शन दर्शो, भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करने से मन में इस दुनिया का सो कॉल्ड सुंदर चीज को देखने की इच्छा खत्म, कोई मन नहीं। बहुत मन कर रहा है ये देखना है वो देखना है। मुकुंद लिंगालय दर्शन दशो, ये हमारा कार्ड दे दो मंदिर के कार्ड। मुकुंद लिंगालय दर्शन दशो तद्भित गातर स्पर्श अंग संगमम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तद्भित गात स्पर्श अंग संगमम मतलब भक्तों के संग में रहना। तद्भित गात स्पर्श अंग संगम। ग्रानम चतपाद सरोज सौरभे, हमेशा प्रसाद को ग्रहण करना, स्वीकार करना। श्रीमद तुलसी रसनम तदर्पित, और ये जो मंदिर में चरणामृत तो उनको देना बात है, इसीलिए तो चरणामृत बनता है। श्रीमद तुलसी तदर्पित, श्रीमद तुलसी रसनम तदर्पित।
जो तुलसी का वाटर होता है उसको टेस्ट करना चाहिए। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर बने, और अपने जो पैर होते हैं हरे क्षेत्र, भगवान के जगह जाने, हरे क्षेत्र, हरि का जो क्षेत्र है उधर जाने के। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और अपने सिर को भगवान के चरण में नमस्कार करें। कामम च दास न तो काम कामया, इच्छा होती है शायद वो हो जाए, लोगों की तरह तरह की इच्छा होती है, इंद्रिय भोग की बड़ी बड़ी इच्छा, उसकी जगह खाली ये इच्छा भगवान की इच्छा पूरी। काम जो दास न तो काम कामया, भगवान का सेवा ही एक काम है और कोई काम नहीं। काम काम है, अपनी कोई इच्छा नहीं। ये जो शरणागति के 6 प्रिंसिपल्स में ये भी एक प्रिंसिपल है। आई हैव नो डिजायर अदर देन डिजायर ऑफ द लॉर्ड। ये तो श्लोक जनाशय शति रति, और इस तरह रति, रति मतलब अटैचमेंट, he developed attachment for the service to the Lord. This is the way to increase attachment for the Lord and completely free from all material desires. So this is such a beautiful poetry. अगर आप इसको गाएंगे भी, this is like magic. सुनने में भी अच्छा लगता है। स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयो पाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत शत कथोदये। सुनने में कितना अच्छा लगता है। हाँ नहीं नहीं, मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो पदभृत्य गात स्पर्श अंग संगमम ज्ञानं तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्य रसनं तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदाभिवन्दने श्रीमत्तुलस शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामम च दास न तो काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाशया। ब्यूटीफुल श्लोक है, इसको कंटेस्ट करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत बारी कोट किया अपने लेक्चर्स में, पर्पस में, उनको बहुत प्रिय था ये श्लोक। दिस श्लोक गिव्स एन एग्जांपल हाउ वी कैन सर्व। इट्स वेरी इजी, बहुत प्रैक्टिकल है। दिस इज प्रैक्टिकल एंगेजमेंट इन डिवोशन सर्विस। बहुत लोग सोचते हैं अपने मन को काबू में लाएंगे, और उनका तरीका क्या होता है? मन से युद्ध करना। उससे मन कभी काबू में नहीं। आप प्रैक्टिकल एंगेजमेंट करें। जैसे आप एंगेजमेंट करेंगे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, मन ऑटोमेटिक काबू आ जाएगा। हम 3rd कैंटो में भी चैप्टर भगवत गीता के डिस्कस कर रहे थे। 3rd चैप्टर में क्या कि मोर इंद्रियाणि परानिया भू इंद्रिय व परम मनः मनसस्सु परा बुद्धे यो बुद्धे परसस्सु सहा। तो शरीर से मोर शक्तिशाली इंद्रिया होती है, तो इंद्रियों की वजह से शरीर की वैल्यू है। इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली मन होता है, बिकॉज मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। मन से ज्यादा शक्तिशाली बुद्धि होती है, बिकॉज बुद्धि मन को भी कंट्रोल कर लेती है। और बुद्धि से शक्तिशाली आत्मा है, सबसे शक्तिशाली, सर्वशक्ति, सबसे सुपीरियर। ना अगर हमको लाइन पे आना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल। अगर आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में ला दोगे, क्योंकि सीधा मन बुद्धि कंट्रोल नहीं होंगे, बहुत शक्तिशाली, आप नहीं संभाल पाओगे, करेक्ट। इसलिए जब आदमी किसी चीज से एडिक्ट हो जाता है, उसको इंद्रियों की वस्तु से कुछ टाइम के लिए दूर रखने की एडवाइस दी जाती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अपनी इंद्रियों दृष्टि से दूर रखो, आप उसको भूल भी जाओ समय का टाइम। यही जितने भी आपके रिहेबिलिटेशन कैंप्स हैं, 2 हफ्ता 3 हफ्ता, यही तरीका। कोई मैजिक नहीं कर रहे, ऐसा करते हैं उसको दूर रखते। तो क्या होता है, धीरे 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 आदमी इंद्रियों की वस्तु से दूर होता है। ठीक है, सो यही सुंदर ज्ञान इधर है। सर्वै मनः कृष्ण पदारे। तो अम्बरीश महाराज ने फॉलो किया है। कोई भी इसको अगर आप फॉलो करेगा, he will also achieve success. He is giving an example. Okay? अब एग्जाम्पल देखिए, इतना शक्तिशाली था, जब दुर्वासा मुनि उन पर गुस्सा होकर एक राक्षस बनाते हैं, तो सुदर्शन चक्र उनको नाश करेगा। उसको पूर्ण सुरक्षा। उसने कोई तपस्या नहीं करी है दुर्वासा मुनि जैसी, या हिरण्यकशिपु जैसी कोई महान तपस्या नहीं। सिंपल, बहुत सिंपल। तो भक्ति की जो छोटी छोटी चीजें करते हैं, ये कोई छोटा चीज नहीं है, बहुत शक्तिशाली।
बिकॉज सर्वशक्तिमान भगवान तब आपकी सुरक्षा कर। योगी होता है या तपस्वी होता है, अपनी शक्ति से अपनी सुरक्षा करना चाहता है, यही समाज है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान से सुरक्षा पाता है, तो अपनी अपने अपने कॉन्फिडेंस पे नहीं चल रहा, और अपने कॉन्फिडेंस पे तो हम देख रहे हैं चलता तो है नहीं, एंड में तो आदमी मर जाता है। लेकिन भगवान की शरण में जाने से फिर वो अमर हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज भजो रे मन श्री नंदन अभय चरणार, अभय चरणार, आदमी अभय हो जाता है। जैसे भगवत गीता में भी है डिस्कशन द फर्स्ट चैप्टर में, जब पांडव और कौरव दोनों शंख बजाते हैं, तो कौरव शंख बजाते हैं तो पांडव लोग सुन लेते हैं, ठीक, वो तो नंबर में भी ज्यादा थे। लेकिन जब पांडव लोग शंख बजाते हैं, कौरव के हृदय कांपने लगते। क्यों? उनका पूरा पूर्ण विश्वास था कि भगवान की सुरक्षा है। तो अम्बरीश महाराज भगवान की शरण लिए हुए थे, इसलिए उनको शांति, इस चीज का डर नहीं, और इससे वो महान भक्ति बन गए। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हाँ हाँ, आज सुबह फ्रूट्स ऑफर किया या मील बनाए? हाँ, खाली फ्रूट्स किया, खाना नहीं बनाया ना अभी? बना दिया पूरा, भगवान को भोग लगा, भगवान को व्रत नहीं कराया। फल भी ऑफर किया थोड़ा।